Assalamu alaikum everyone. I am Joseph Naqvi, and inshallah today we'll be starting off with our business O levels IGCSE syllabus. Topic for today is business activity, which is topic number 1 of chapter number 1. The learning objectives according to CIE website are the following. We will differentiate between needs, wants, what scarcity and opportunity cost, what is specialization and importance of specialization, purpose of business activity, and the concept of value addition. So let's first try to differentiate between what a need is and what want is. A need is a good or service essential for living. For example, roti, kapra, and makan, which was also जो नारा था भुट्टो का, right? So basically essential का मतलब ये है कि जिसके बगैर लाइफ स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, ठीक है? रोटी, कपड़ा एंड मकान ये वो चीजें हैं which is same for everyone. So essentially the needs are same for every human being. क्योंकि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान यानी पानी, हवा ये सारी चीजें चाहिए होती है. Whereas a want is a good or service that people would like to have but which isn't essential for living. For instance, ये ऐसी चीज है which is desirable, you want that product, but अगर ना भी हो तो you'll spend your life regardless. ठीक है जी? For example, cars हैं, phones हैं, and any other item जो आपको चाहिए होता है but जो जिंदगी के लिए जरूरी ना हो. Wants can be different for everyone. हो सकता है one person might want a car at the moment while the other person wants a watch and so on and so forth. ठीक है? So that's the basic difference between need and a want. Now we'll look at scarcity and opportunity cost. Scarcity is the basic economic problem, which means scarcity का जो आपका dictionary meaning होता है, that is limited. To be scarce means एक चीज limited है. It is a situation that exists where there are unlimited. Problem कहाँ से start होती है? जब आपके limited resources यानी scarcity होती है. But being human beings, we all have unlimited wants. यानी if one of our wants get fulfilled, हम दूसरी want पे चले जाएंगे. या हो ये भी हो सकता है simultaneously आपकी बहुत सारी wants होंगी. तो प्रॉब्लम स्टार्ट ही यहीं से होती है कि क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट अनलिमिटेड वांट्स, तो ये होता है कि जी कौन सी वांट सेटिस्फाई करनी है और कौन सी यू नीड टू लेट गो ऑफ. ठीक है? सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपके जो रिसोर्सेज होंगे जिसको अभी हम इन अ व्हाइल विल स्टडी कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, इनपुट्स जिसे कहते हैं, वो स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, बट आपकी जो वांट्स हैं दे आर हेवी इन दिस केस, राइट? और व्हाट इज नोन एज अनलिमिटेड है. ठीक है? Opportunity cost. अब क्योंकि we have discussed scarcity, limited resources but unlimited wants, so now you need to make a choice. For example जी, option A versus option B. क्योंकि resources limited हैं, आप एक चीज select कर लेते हैं and you have to let go of another thing. So by definition, opportunity cost is the next best alternative that is foregone. This is important. जिसको छोड़ दिया है, इसकी दो conditions हैं. एक तो वो next best alternative हो, यानी second priority पे जो चीज थी, और दूसरा आप जिसको उस चीज को छोड़ देते हैं, you let go of that, that becomes your opportunity cost. For example, if you are attending this class online, ठीक है, तो basically आप अपना time spend कर रहे हैं in this class. So what's your opportunity cost of attending this class? इसका मतलब है अगर आप क्लास ना ले रहे होते तो आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे होते. Now see what's limited over here. आपका टाइम जो है वो that's also a resource, ठीक है, but that's limited. अगर आप अपना टाइम क्लास अटेंड करने में लगा रहे हैं, इसका मतलब है someone might want to watch a movie at the moment but वो देख नहीं पा रहा क्योंकि वो क्लास उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है. सो द मूवी becomes opportunity cost. किसी को हो सकता है फुटबॉल खेलने जाने हो but because of the class he is unable to do so or she is unable to do so, so that becomes your opportunity cost. आपके केस में एक और relevant example ये होगी जी, आपके रिसोर्स क्या है, लेट्स से मनी है, ठीक है, यू गो टू अ मार्केट और शॉप, अब पैसे हैं लिमिटेड, लेट्स से 100 रुपीज, ठीक है जी, सो यू कैन आइदर बाय लेट्स से अ कॉर्नेटो और अ फीस्ट, ठीक है, क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जिस चीज को आप छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल यू prefer to buy cornetto instead of feast, so the next best alternative was feast, you had to let go of it because आपके पास पैसे या रिसोर्स कम था, so that becomes your opportunity cost. तो इस एग्जांपल में भी as you can see 1 hour of studying, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जी, वो 2 टीवी एपिसोड देख सकता था, ठीक है, तो दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? अच्छा, अब इस सब को जो है अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया उसको लेट्स ट्राई टू मिक्स इट अप, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हो रही थी जी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर
लिमिटेड या स्केर्स, ठीक है जी। इससे होता क्या है जी, यू नीड टू मेक अ चॉइस, यार इसको बाय करें या इसको बनाएं, फॉर एग्जांपल। सो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो एक इकोनॉमी क्या सोचेगी, हर चीज तो हर कोई नहीं बना सकता। सो व्हाट्स द टॉप प्रायोरिटी, आप उसको चूज करेंगे। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू लेट गो ऑफ, वो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। सो बेसिकली क्या हो रहा है जी, यू हैव अनलिमिटेड पॉइंट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि यार क्या बनाना है और किसके लिए बनाना है। अब वो आगे की बात है कि किसके लिए क्या बनाना है, दैट डिपेंड्स ऑन हु द पर्सन हु इज विलिंग टू बाय द गुड एंड सर्विस। यानी जितने लोगों की ज्यादा डिमांड होगी फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वही चीज बनेगी जिसकी डिमांड होगी, ठीक है जी। बट अभी तक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके लिए यहीं तक था, द होल सिनेरियो। तो इसमें यू नीड टू इंक्लूड अनलिमिटेड वांट्स वाली कहानी बट लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैरसिटी आ जाएगी, फिर आपको चॉइस करनी पड़ेगी, और फिर यू नीड टू लेट गो ऑफ अदर थिंग्स या सेकंड प्रायोरिटी, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इफ यू टच अपॉन दीज पॉइंट्स, इसको एक साथ मिला के आपकी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिटेल में एक्सप्लेन होगी, ठीक है जी। So let's move on. अच्छा जी, now we have factors of production. Factors of production, production के factors और inputs, इसे inputs भी कहते हैं। inputs क्यों कहते हैं, क्योंकि when you combine these factors of production और inputs, इनको combine करके you produce output of goods and services. So primarily these are the resources required to produce goods or services, या goods और services इस केस में outputs होते हैं, ये factors of production जो होते हैं ये inputs होते हैं। Basically, we have four categories: land, labor, capital, and enterprise. इसको हम briefly एक one by one करके देखते हैं and let's try to dissect them. अच्छा जी, हाँ जी मुर्तजा, कौन सी मूवी है? सर ये तो बहुत पुरानी मूवी है। नहीं पुरानी तो है, ये तो तुम्हारी बर्थ से भी पुरानी है, मगर है कौन सी? अलीना, विच वन इज दिस? और रबिया, ठीक है दिस। सिम्बा। हाँ, दिस इज लायन किंग ना, ठीक है। उसमें सिम्बा और उसका पता नहीं बाप का क्या नाम होता है। खैर एनीवेज, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनका लैंड तो क्या है जी, एवरीथिंग द लाइट्स टच इज आवर्स, ठीक है। बट इन आवर बिजनेस कोर्स हमने ये देखना है कि लैंड कंसिस्ट जहां से भी आप अपने रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स लेबर। में देखो दोनों बातें आएंगी, द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स पुट इन बाय द वर्कर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, लेबर की स्लाइड नजर आ रही है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब द रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेज और सैलरी, या द कॉस्ट ऑफ लेबर इज वेज और सैलरी। रिवॉर्ड किसके लिए जी? लेबर के लिए। कॉस्ट किसके लिए? फॉर द एम्प्लॉयर्स। नाउ लेबर दो तरह के आपके पास, फिजिकल लेबर जिसे हम जनरली अपनी जबान में मजदूर कहते हैं, बट लेबर ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल लेबर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, या बाकी सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्या आपको दे रहे हैं, मेंटल लेबर पुट इन कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ऑल ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ मेंटल लेबर, ठीक है। तो लेबर में ये दोनों चीजें आ जाएगी, मेंटल भी और फिजिकल भी। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल जी? द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और एनी अदर एसेट। एसेट में क्या आ जाता है जी? मशीनरी आ जाती है, इक्विपमेंट आ जाती है, जो भी ओनर इन्वेस्ट करेगा इन द बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल, ठीक है। उसका रिवॉर्ड क्या है जी? इंटरेस्ट रिसीव करते हैं हम। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस बन सकता है। एंड देन द लास्ट वन इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस और अ फर्म। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? who has the risk taking ability by bringing together the factors of production to produce good and services। यानी कोई ऐसा बंदा होगा या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी that will combine all the factors of production together, ठीक है जी। यानी लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। अब इसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज देर इज ऑलवेज ए रिस्क। देखो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि देर विल बी नो रिस्क, उसमें देर हैज टू बी सम रिस्क। हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, यानी रिस्क को कम कर सकते हैं बाय प्लानिंग वेल, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, उसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और व्हाई डू यू स्टार्ट अ बिजनेस? द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्राइज इज प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। सो मुर्तजा, आई होप यू कैन बी जस्ट लाइक दिस गाय वन डे, या
क्या ख्याल है ना बिजनेस? यस ठीक है, बट ये बात है, सही है अलीना, यहाँ तक क्लियर है? रबिया? Yes, sir. ठीक है, तो मुर्तजा तुम अपनी चाबी से बल्ब ऑन कर रहे होगे, सही है, इंस्टेड ऑफ switching on the light. All right, then comes specialization. Ab specialization occurs when a person or organization concentrates on a task at which they are best at. For instance, ये आप मुझे कहते हैं सर हमें, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि हमें ना केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. अब मैं क्लास तो शायद ले लूँ, बट मुझे खुद नहीं कुछ पता, ठीक है, आई डू नॉट नो ABC ऑफ केमिस्ट्री, या इवन इफ आई डू नो एंड इफ आई एम नॉट स्पेशलाइज इन दैट फील्ड, फिर आपका काम भी खराब है, मेरा काम भी खराब है. सो स्पेशलाइजेशन ये कहता है कि यार हर बंदा जो है अपने रेलेवेंट टास्क परफॉर्म करे एट विच दे आर बेस्ट. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ एवरीवन डूइंग एवरी जॉब, the tasks are divided among people who are skilled and efficient at them. तो particularly आपने वही टास्क करना है जिसमें आप बेहतर हैं. For example, in an organization where there are 5 departments, जो फ्रेमिंग में स्पेशलाइज कर रही थी वो आंटी फ्रेमिंग में हायर हुई हुई है, साइडिंग, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, शिपिंग. तो सिमिलरली ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है आपने वही बंदा हायर करना है हु इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, इन ऑर्डर टू attain the best efficiency level, right? अब what about specialization? इसके pros भी हैं यानी advantages भी हैं and disadvantages भी हैं. What can be the advantages? मैथ्स बात है भाई, utilizing natural talent. आप basically जिसका जो talent है आप उसको utilize कर रहे हैं. This will be efficient. Efficient means आप कम time में या utilizing by using कम resources you are producing more. ठीक है, this is what efficient is. Higher quality products. Why? Because each task is performed by the specialized worker. ठीक है, टाइम एफिशिएंट, यू विल सेव टाइम, आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी आपकी. लेस ट्रेनिंग टाइम. व्हाई? बिकॉज आप यू आर ऑलरेडी वेल एजुकेटेड इन दैट फील्ड, यू आर वेल ट्रेन्ड इन दैट फील्ड, तो इट वोंट टेक लॉन्ग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. लेस ट्रेन एंड बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट भी कम हो सकती है, एवरेज कॉस्ट. ठीक है, बट ऑब्वियसली हर चीज के प्रोस भी होंगे तो हर चीज के कॉन्स भी होंगे. ठीक है, कॉन्स मींस ड्रॉबैक्स. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर. अब देखो अगर स्पेशलाइज्ड बंदा है आपके पास, ठीक है, रिड्यूस्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि नाउ इफ आई नो माय टास्क, ठीक है, एंड आई ओनली नो माय टास्क, तो आई कैन नॉट मूव अराउंड इन अनदर टास्क. ठीक है, मैं कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा. वाई? बिकॉज मुझे सिर्फ अपना काम आता है. तो ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा कि लेबर जो है इमोबाइल हो जाएगा, वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता अराउंड. रिटार्टेड पर्सनालिटी इसलिए बोलते हैं कि वो मोनोटोनस होगा, तो यू विल बी डूइंग द सेम जॉब ओवर एंड ओवर अगेन. बोरिंग. बोरिंग अगेन इसीलिए होगा कि देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न, राइट? आप वही काम कर रहे हैं जो आपका मतलब काफी अरसे से चला आ रहा है. एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि देखो इफ यू हायर स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, तो ये थोड़ी कहेंगे ऑल राइट जी हमें मिनिमम वेज दे दीजिए या नॉमिनल वेज दे दीजिए. दे वुड से, उनका आर्गुमेंट क्या होगा जी, वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑन आवर ओन पर्सनालिटीज एंड देयरफॉर वी डिमांड हायर वेजेस क्योंकि वी नो आवर टास्क द बेस्ट. एंड देन लैक ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब प्राइड, केयरलेसनेस, अगेन ये सारी चीजें कहां से लीड हो रही हैं? बिकॉज द वर्क इज बोरिंग. तो ये सारी चीजें मिस आउट हो रही होंगी. ठीक है, एनी क्वेश्चन हियर बाय एनीवन? प्लीज डू आस्क. और राइट, चलो ठीक है, जब भी हो प्लीज डू आस्क मी. ठीक है, अच्छा जी, पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. सो वी हैव गॉन थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड स्पेशलाइजेशन, बट व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस? ठीक है, बिजनेस की फॉर्मल डेफिनेशन अब क्या है? एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. जब तक बिजनेस एक्टिविटी आप नहीं करेंगे जब तक कि डिमांड नहीं होगी उसकी. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द बिजनेस, ऑफ द पीपल, ऑफ द कंज्यूमर्स, देयर इज बाउंड टू बी अ बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द बिजनेस इज. जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा सो दैट इट कैन सैटिस्फाई नीड्स एंड वैल्यू. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज एडेड वैल्यू या वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं. Added value is the difference between the cost of materials bought in and the selling price of the product. Now, this is something different from your profit. देखो profit क्या होता है? Profit का मतलब ये कि total incomes minus total expenses, ये आपका profit है.
बट वैल्यू एडिशन या एडेड वैल्यू का मतलब ये टोटल इनकम या सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ओनली। इनपुट्स का क्या मतलब है, जो भी आप मटेरियल वगैरह लेकर आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है, आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सही है। The amount of value the business has added to the raw materials by turning it into a finished product. अब raw material आपका pure form में होता है, natural form में। By applying processes, by using machinery, आप क्या करते हैं, you try to convert that raw material into finished goods. So basically आप उस raw material पे you are adding value, ठीक है, processes लगा के। Every business wants to add value to their products, so they may charge a higher price for their products and gain more profits, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आपने याद क्या करना है, वैल्यू एडिशन से या एडेड वैल्यू से आपकी कॉस्ट लाजमी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली यू आर अप्लाइंग सम प्रोसेसेस, जो भी आप कन्वर्जन की प्रोसेस लगा रहे हैं, इट विल इनकर सम कॉस्ट, बट आपकी कॉस्ट तो राइज होगी, बट यू कैन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। हो सकता है मेरी कॉस्ट 10 रुपीज बढ़ी हो किसी प्रोसेस लगाने से, बट आई कैन चार्ज लेट्स से 20 और 30 रुपीज मोर इन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। दिस बेसिकली मैं फिर कैसे वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये 30 माइनस 10, 20 रुपीज की मैंने वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। डज दिस मेक सेंस? रबिया क्लियर है ये? Yes, sir. ऑल राइट। अब हाउ टू इंक्रीज वैल्यू एडिशन या एडेड वैल्यू, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर दो तरीके हैं, आप या तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, या अपनी कॉस्ट को कम से कम कर दीजिए। इन दोनों तरीकों से आपका आंसर मैक्सिमाइज हो जाएगा, एडेड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। So added value of a product is its price less the cost of production, as we discussed. So reducing cost of production से भी rise होगी, and by increasing the selling price उससे भी आपकी value addition ज्यादा हो जाएगी mathematically भी। But there will be problems that rise from both these measures. अब it's not that easy कि यार मैं cost कम कर दूं या price ज्यादा कर दूं। टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको फिर क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने, आपको लेबर भी चीप चाहिए, यानी हो सकता है कि आप स्पेशलाइज लेबर ना हायर कर पाए, रॉ मटेरियल्स भी सस्ता चाहिए, यानी क्वालिटी आपकी गिर सकती है ना भाई, इसी तरह कॉस्ट कम होगी ना। विच विल क्रिएट पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ओनली लोअर्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। पीपल मे नॉट बाय इट एंड व्हेन प्राइसेस आर रेज्ड, हायर प्राइसेस में क्या होगा जी, कंज्यूमर लूज हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल क्या होगा जी, they might move to another competitor कि यार इस वाले की तो प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, ठीक है। तो वो अपने they will shift away from your business to your competitor, ठीक है। मुर्शिदा क्लियर है? मसले क्या होंगे when you try to increase? अच्छा जी, and then ways to add value to product। अब आपने क्या करना है, किस किस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाय ब्रांडिंग। अच्छा व्हाट इज ब्रांडिंग जी? नेमिंग द प्रोडक्ट, नेमिंग द कंपनी, ठीक है। हाउ डू यू नो कि यार ये फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, दिस इज किटकैट और दिस इज मार्स, उसकी ब्रांडिंग से। जितनी ब्रांडिंग अच्छी होगी या जितना ब्रांड नेम अच्छा एस्टैब्लिश होगा, इसका मतलब यू आर एडिंग वैल्यू। हम कहते हैं ना यार इसके ब्रांडिंग एंड पैकिंग। सॉरी कम अगेन। ब्रांडिंग एंड पैकिंग। हाँ बिल्कुल सही है, पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिजाइन जितना प्रीमियम होगा, इवन इफ यू लुक इन स्मार्टफोन्स, अगर जितना ग्लास मटेरियल ज्यादा यूज अच्छे किए होंगे, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो डाउट कि कॉस्ट बढ़ रही होगी, बट आप सेलिंग प्राइस मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं। सेलिंग पॉइंट और यूनिक सेलिंग पॉइंट वो ऐसा फीचर होगा दैट डिफरेंशिएट्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जितना यूनिक होगा, जितना स्पेशल फीचर होगा, उस हिसाब से आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग योर वैल्यू एडिशन। क्वालिटी, अगेन क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज भी हो सकती है, ठीक है। जितनी अच्छी क्वालिटी, रिलायबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा, उसका आप उतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जितनी गंदी क्वालिटी होगी, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी पेइंग हाई प्राइसेस, ठीक है। उससे हो तो सकता है कि आप कॉस्ट कम कर दें, but then people might shift away as well. And then convenience। अब देखो ये सारे वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट्स आप कस्टमर्स को देने हैं, तो कन्वीनियंस टू द कस्टमर क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल जी आप डिलीवर एट होम कर दें, दिस इज मच, ये है क्या है, एक तरीका है वैल्यू ऐड करने का। फ्री आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, या फ्री रिपेयर्स प्रोवाइड कर दीजिए। ये सारी चीजें कन्वीनियंस का पार्ट बन जाती हैं।
which means कि you can add value through these. अब आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही होगी बट आप इसका प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. Any question? Alina, is that clear? Yes, sir. Okay, Murtaza, Rabia, any question? No, sir. All right, ठीक है. अब हम ये क्या करेंगे कि एक चैप्टर, ये तो एक टॉपिक है ना, एक टॉपिक डेली एंड देन व्हेन द चैप्टर फिनिशेस, एक चैप्टर में 5 टॉपिक्स होते हैं, 5-6, देन वी विल मूव ऑन टू द पेपर. ठीक है, तो एक साथ साथ पेपर भी कर रहे होंगे. ठीक है रबिया, इज दैट फाइन? और आप अपनी भी जो तौर पे रिवीजन करनी है, कीप दैट अप एज वेल. ठीक है रबिया. Yes. और रबिया, एनी न्यूज़ के पेपर 1 ही हो रहा है सिर्फ? मुझे तो अभी तक यही पता चला है. ऐसे ही है? सर कह पेपर तो नहीं कि OPMCQ वाला. जी मुर्तजा, क्या कह रहे हैं आप? सर पेपर 1 ही हो रहा है, MCQs वाला. एमसीक्यूज तो देखो बिजनेस में नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज द कंफ्यूजन कि इंग्लिश, मैथ्स और बिजनेस, इसके कौन से पेपर्स हो रहे हैं. तो पेपर 1 ही का सुना मैंने तो अभी तक. सर मैं तो ये न्यूज़ है कि पेपर 1 हो रहा है, 60 मिनट्स का होगा और उसमें सारे MCQs बस. अच्छा, तो चेंज किया उन्होंने. ठीक है. ये मतलब जी, जी. इसकी साइड पे लिखा हुआ है कि सारे सब्जेक्ट्स का यही होगा, लिखा हुआ है. एमसीक्यूज टाइप ही होगा. हाँ, यस. अच्छा, चलो ये कंफर्म हो जाए ना, फिर मैं उस हिसाब से फिर पेपर की प्रैक्टिस करते हैं. एंड अलीना, आपका भी सिर्फ मैथ्स है? मैथ्स एंड इंग्लिश और ओनली मैथ्स जुलाई में? सर मेरा मैथ्स है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो मैथ्स है या नहीं, क्योंकि मेरा एक्सटेंडेड मैथ्स नहीं है. अच्छा, तो अच्छा, ये तो कंफर्म करना पड़ेगा फिर. यू कैन ऑलवेज ईमेल ब्रिटिश काउंसिल, उनका फिर देख ली क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सिर्फ बिजनेस रबिया का ही है, इन्होंने जीसी के थ्रू किया था. आपके सारे सब्जेक्ट्स आईजीसीएसई के थ्रू हैं मुर्तजा और अलीना? सर कॉमर्स के अलावा फर्स्ट ओ कॉमर्स लेवल सारे GCSE. अच्छा, सारे आईजीसीएसई. ठीक है. विच मीन्स ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स है, और इंग्लिश भी आप कह रहे हो अक्टूबर में देना है. ठीक है. चलो, मेक सेंस. ठीक है, तो खैर हमारा यही टाइम रहेगा 5 o'clock. तो फिर डेली टॉपिक्स भी करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए, एंड देन आफ्टर अ चैप्टर पास पेपर्स. ठीक है सर रबिया? 5 to 5:30. 5 to 5:30 या? ठीक है सर. ठीक है ना, तो मेक श्योर, वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा था बट आई वुड लाइक कि आप प्लीज अटेंड जरूर कीजिए क्लास. ठीक है. ठीक है सर. चलो फिर, और मंडे टू फ्राइडे तो सैटरडे को पेपर शेपर कर लिया करेंगे. ठीक है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 चैप्टर. ठीक है. ओके सर. चलो, enjoy your vacations then. ठीक है जी, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.